Good morning, everyone. Okay, welcome to this solo leveling journey, Riemann-Eber's theorem, and then cube root of unity. सबसे पहले theta को generalized format में देखते हैं. Theta is -1, so 2 cos pi is also negative. That is properties of 1 omega and omega. Geometry plotting of 1 omega, most desired topic. That is nth root of unity. Alpha square, alpha cube. So these two are also conjugate to each other. अगर हम fold कर रहे हैं, तो हमें दूसरा वाला मिलता है. टोटल n टाइम्स तक हम फोल्ड करेंगे तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, वेलकम टू दिस सोलो लेवलिंग जर्नी. Today we are about to complete Riemann-Eber's theorem and then cube root of unity and nth root of unity and then properties and also some questions on these topics. Okay, so let us start first Riemann-Eber's theorem. There is two part of this Riemann-Eber's theorem, that is DMT. We will use its short form DMT. Okay, first part is to get higher powers of a complex number. For example, z to the power 100, z to the power 200, 1000, etc. Okay, but this in z to the power is belongs to the integers, and another is to get root of a complex number like nth root of unity, मतलब like cube root of unity. We will use this Riemann-Eber's theorem part 2. Okay, so let's start this first part. It's like this: cos theta plus I sin theta to the power n, where this n belongs to z. Z here is integer. Okay, we know that we can convert any complex number into polar form or trigo form or Euler form. Mostly यहीं पे हम लोग trigo form ही use करेंगे. Okay, so जब n belongs to z, then n is simply multiplied with the theta is equal to cos of n theta plus I sin of n theta. Okay, this is the first theorem. Okay, now example के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि cos of 2 pi by let's say 2 pi by let's say 3 pi by 16 plus I sin 3 pi by 16, this whole power to the power 4. Okay, so 4 is an integer, so that's why 4 is simply multiplied with this theta. Okay, is equal to cos of 3 pi by 4 plus I sin of 3 pi by 4 मल्टीप्लाइड होने के बाद का ये. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ Riemann-Eber's theorem second part. Second part is about to get the root of a complex number like z to the power 10 is equal to 1. Now you should find z is equal to 1 to the power 1 by 10. Okay, this 1 by 10 is rational. This 1 by 10 is rational. So this format में होगा second part. So cos theta plus I sin theta to the power p by q, while p comma q belongs to integer and q is not equal to 0. Okay, so first जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अब ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसका पावर रैशनल्स हो, आई मीन रूट के फॉर्मेट में हो, देन इसको सबसे पहले थीटा को जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लेके आओ. थीटा एंड थीटा प्लस 2 pi is more or less same actually. So cos of theta plus 2m pi plus I sin of
theta plus 2 m pi. Okay, m pi, m is m is a natural number or m is an integer also. So m की वैल्यू अगर 1 होगा तो theta plus 2 pi, it means यही से स्टार्ट किए थे थीटा, फिर 2 पाई तक ऐड करेंगे थीटा प्लस 2 पाई, सेम एंगल आपको मिलेगा. ओके, दैट्स इट. तो जनरलाइज फॉर्मेट में इसलिए है ताकि डिफरेंट वैल्यूज मिले. ओके, नाउ ऐसे नाउ जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड विथ p by q with the angle. Okay, now simply multiplied with the p by q with the angle. Now where m is equal to, मल्टीप्लाई करने के बाद m का जो वैल्यूज होगा वो 0 से स्टार्ट होगा 1 2 डॉट 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 q माइनस 1 तक चलेगा. ओके, q माइनस 1 तक चलेगा. q माइनस 1 तक क्यों चलेगा? क्योंकि q इज डिसाइडिंग फैक्टर हियर. Okay, how q is deciding factor here? Like suppose x cube is equal to something 5. Now x is equal to 5 to the power 1 by 3. So this 3 is nothing but the degree of that equation, the highest degree of this variable x, right? So you will get 3 different values from this equation. यही 3 जो है 5 के पावर में 1 by 3 के फॉर्मेट में आया. ओके, so this 3 is nothing but the highest power or the degree of that equation. So this q is nothing but the degree. That's why q is deciding factor here. Q different values you will get here. Okay, I hope it's clear up to here. Now we will move to some of questions related to this. Okay, question number 23. Solve z cube is equal to 1 plus I. So यहाँ पे z का कितना values मिलेंगे? There will be 3 values because degree is 3. So the value of q is 3 and we will use this m का कितना वैल्यू मिलेगा? 3 वैल्यू, दैट इज 0 1 एंड 2. सो यूज दिस. सबसे पहले इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो. इसको मॉड वैल्यू √2 है और दिस इज आर्गुमेंट इज थीटा 45 डिग्री. सो cos pi by 4 प्लस i sin pi by 4. आर्गुमेंट मॉड्यूलस यूज करके पॉइलर्स फॉर्म एंड पोलर फॉर्मेट में लिखना सीखो. Okay, so now z is equal to 2 to the power half into 1 by 3. Now cos pi by 4 plus I sin pi by 4 1 by 3. So this 1 by 3 is rational. So we have to use the De Moivre's theorem, second part, isn't it? Yes. तो सबसे पहले इसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिखो. इसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा? cos pi by 4 plus 2m pi, right? Yes, plus I sin pi by 4 plus 2m pi. इसके बाद क्या होता है? सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ओके, सो 1 by 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एंगल के नीचे 1 by 3 आ जाएगा. नाउ m के वैल्यूज यही पे m इज इक्वल टू 0 1 2. सो m की 0 वैल्यू में एक z0 मिलेगा. व्हेन m इज 1 then z1 मिलेगा और z2. Total these 3 values you will get from here. Okay, so just put m is equal to 0. When you put m is equal to 0, you will get 2 to the power 1 by 6 cos pi by 4, that is
1/√2 प्लस आई साइन पाई/4 ही होगा आई गेस, नहीं सॉरी पाई/12 होगा। तो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे आपको। ओके यस, बाकी खुद से करना है। ओके अनदर क्वेश्चन इज, ये 2012 में एडवांस में आया था। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z⁻10 प्लस 31 z⁵ minus 32 is equal to 0 for which real part of z is greater than equal to 0। तो z का जो 10 वैल्यू मिलेंगे उनमें से जिन जिन का रियल पार्ट ऑफ z is positive that is greater than 0, you have to tell that number of solutions। इतना तो इस तरीके से कितना z मिलेगा जाकि जिसका रियल वैल्यूज रियल पार्ट जो है वो 0 से बड़ा हो। वेल लेट्स डू इट, थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके सो सिंपली इसको z⁵ इज इक्वल टू t पुट कर लेते हैं हम लोग। तो t पुट करेंगे दैट इज t²। ये जस्ट कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए तो t² प्लस 32t minus t minus 32 is equal to 0। तो सिंपली जस्ट 31 t उसको जस्ट मिडिल टर्म दो। अब t कॉमन लेंगे तो t प्लस 32 minus 1 t प्लस 32 इक्वल टू 0। यही से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं t minus 1 into t plus 32 equal to 0। So you get z⁵ is equal to 1 और z⁵ is equal to minus 32। तो यही से 5 वैल्यू मिलेंगे। From that you will get 5 different values of z and from this also you will get 5 different values of z। और इनमें से कितना वैल्यूज है जिसका रियल पार्ट जो है वो 0 से बड़ा है, तो उतना नंबर हमें लिखना है। ओके हाँ, सो फर्स्ट मैं इस पार्ट का करके देता हूँ, आपको ये वाला पोर्शन खुद से करना है घर में। ओके सो इसको प्रोसीड करेंगे तो फर्स्ट z इज इक्वल टू minus 32 to the power 1/5 is equal to minus 2 into 1 to the power, no sorry 32 into okay so 32 minus 32 to the power sorry ना 32 का 1/5 लेंगे पावर में तो 2 मिलेगा आपको। ओके आई होप इट्स डन हियर। ओके नाउ 1 का ऑयलर्स फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, -1 का cos पाई का वैल्यू -1 cos पाई प्लस आई साइन पाई, राइट यस। तो cos पाई प्लस आई साइन पाई टू द पावर 1/5 yes a power में 1/5 that is the second part of de Moivre's theorem। That's why we will first generalize this angle। So 2 cos of pi plus 2m pi plus I sin of pi plus 2m pi। ओके आई होप यही तक क्लियर है। उसके बाद जब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जो पावर है उसको थीटा के साथ, तो ये मिला है अब हमें। ओके सो 5 डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या होगा, यहीं पे जो m है 0 1 2 3 4 दिस 5 वैल्यूज यू विल गेट। तो यही से z का ये z है 1 2 3 4 5 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4। so यहीं पे m is equal to 0, यहीं पे m is equal to 1, यहीं पे m is equal to 2, यहीं पे m is equal to 3 एंड यहीं पे m is equal to 4। इसके करस्पॉन्डिंग आपको 4 वैल्यूज मिलेंगे। तो z इज इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे
तो ये क्या मिलेगा 2 cos z सॉरी m 0 पुट करेंगे तो z0 क्या मिलेगा cos पाई बाई 5 प्लस i sin पाई बाई 5. So real part cos pi by 5 cos 36 degree. It comes in first quadrant. First quadrant में cos positive होता है. So 2 cos 5 pi by 5 is also positive number. So this will count in our ultimate final answer. Okay? So एक value है. Now अगर हम लोग m is equal to 1 put kare, then what we will find? So 1 नहीं 2 put कर देते हैं. Okay? 2 put करते हैं. So then real part of z क्या मिलेगा 2 cos pi plus 4 pi, right? Pi plus 4 pi, that's 5 pi by 5. That is cos pi plus I sin pi, right? Yes. But look at here, this cos pi is negative. Cos pi is minus 1. So 2 cos pi is also negative, minus 2. But here we need real part of z is greater than 0. But here that z2 we get here from this from putting m is equal to 2, that is 2 cos pi is minus 2, which is less than 0. So this one will not be counted. Okay, in our final answer this one will not be counted. In the same way अगर m is equal to 1 बैठाएंगे तब भी हमें जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस आएंगे, देन वी विल नॉट काउंट दिस वन टू. ओनली m is equal to 4. When m is equal to 4, then the real part of z is 2 cos m is equal to 4, right? 4 then 8 9 pi by 5 plus I sin 9 pi by 5. अब cos 9 pi by 5 ये जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट से है. It's almost about 274 degree, and we know that in the fourth quadrant, which is the range of 270 degree to 360 degree, comes in that quadrant cos is positive. So 2 cos 9 pi by 5 is also a positive quantity. So real part of that z4 is also positive number. So this one will also be counted. But these three value, when m is equal to 1, m is equal to 2 and m is equal to 3, will not be counted here. Why? Because in those cases the real part of z is negative. Okay, and we need the real part of z is positive. So from this equation z to the power 5 is equal to minus 32, we will get our desired answer is 2, and from this one we will get 3. So total 2 plus 3 is equal to 5. So the number of solutions of the equation for which real part of z is greater than 0 is 5. यही से आपको 3 वैल्यू मिलेंगे. ऐसे ही z is equal to 0, 1, 2, 3, 4 पुट करोगे तो आपको ये मिलेंगे. वो क्या होगा अल्टीमेटली उसका फॉर्मेट, तो वो कुछ इस तरीके के cos pi, right? cos 0 plus I sin 0, cos 0 plus I sin 0 to the power 1 by 5, then cos 0 plus 2m pi plus I sin 0 plus 2m pi, then that means nothing but the z is equal to cos of 2m pi plus I sin 2m pi to the power 1 by 5. अब 1 by 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2m pi by 5, तो cos 2m pi by 5. अब 0 पुट करोगे तो cos 2m by 5 cos pi by 5, 0 पुट करेंगे तो cos 0, that is positive first one. m की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो cos 2 pi by 5, this is also in first quadrant, cos 2 pi by 5 is 72 degree I guess. It's also in first quadrant. थर्ड वाला जो है वो नहीं रहेगा, फोर्थ वाला भी नहीं रहेगा, फिफ्थ वाला फिर से वही
फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको, आई गेस. So these three values you will get from here and these two values from here. Okay, so number of solution here is 5. Yes, it's done. Wow. I hope आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा. अगर समझ में आ रहा है तो खुद को शाबाशी दीजिए. Okay, now here comes our beloved topic, that is cube root of unity. Okay, so where we will use that De Moivre's theorem. Okay, so let's do it. Cube root of unity, it means z is a complex number. अगर हम लोग इसका पावर क्यूब करेंगे then we will get 1, or you can say z is equal to 1 to the power 1 by 3. तो z का 3 वैल्यू मिलेंगे जिसको पावर हम लोग 3 करेंगे तो 1 मिलेगा. ओके, दिस इज, सो लेट्स डू इट. तो z इज इक्वल टू, इसको सबसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें. सो cos 0 प्लस i sin 0, राइट. cos 0 प्लस i sin 0 to the power 1 by 3. Now, 1 by 3, this is rational number. So, De Moivre's theorem, second part. So, cos, सबसे पहले एंगल को रैशनलाइज करना है, जनरलाइज करना है. तो 0 plus 2m pi is 2m pi plus I sin 2m pi. Okay? Now 1 by 3, उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एंगल के साथ तो by 3. Okay? Now m is equal to 0, 1, 2. हम लोग क्या लिखते हैं? q minus 1. Right? q is here 3. तो q minus 1 is 2. 2 तक चलेंगे तो m का 3 वैल्यूज होंगे. Okay, so from here you will get 3 different values of z. So put m is equal to 0, you will get z naught. And what is z naught? Simply put करेंगे m is equal to 0 put करेंगे, m is equal to 1 put करेंगे, and then m is equal to 2 put करेंगे. 0 put करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? cos 0 plus i sin 0, that is simply 1 plus I into 0. That is simply 1. Okay, and the second one, अगर m is equal to 1 put करें, so you will get z1, which is, so cos 2 pi by 3. Cos 2 pi by 3 is cos, it means cos of 120 degree is minus half. Okay, minus half. Now I sin 2 pi by 3. Sin 2 pi by 3 is root 3 by 2 plus I root 3 by 2, and this m is equal to 2. You will get z2, which is minus half minus I root 3 by 2. Okay, cos 4 pi by 3. Cos 4 pi by 3 is also minus half अगर 2 बैठाएंगे तो. sin 4 pi by 3 is also, it's in actually ये 4 pi by 3 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहाँ पे cos भी नेगेटिव है, sin भी नेगेटिव है, इसलिए दोनों से पहले नेगेटिव होता है. Look at this, it's 1 and we call it omega and it's omega square, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये मिलेंगे. Okay, now these two are conjugate to each other. Okay, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक में तुमने पढ़े होंगे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्मेट में मिलता है, पेयर्स में मिलता है और दो कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे का. ओके, सो दिस इज वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ cube root of unity, that is properties of 1 omega and omega square. Okay, so first property is, इसको हम लोग ओमेगा बोलेंगे एंड इसको ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे. ओके, इसको याद रखो. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1.
इट इम्प्लाइज ओमेगा टू द पावर 3 का मल्टीपल। थ्री का मल्टीपल इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका क्यूब करोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा रिटर्न, इसका भी क्यूब करोगे तो 1 मिलेगा, इसका भी क्यूब करोगे तो 1 ही मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस। द सेकंड प्रॉपर्टी इज mod of omega और mod of omega square is equal to 1। और इसका तो mod 1 ही है, इसको mod करके देखो, रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 3/4 is equal to 4/4 is equal to 1। Okay, so mod of this value is this। Now one interesting thing is, if you add 1 plus omega square, you will find, let's find the summation, that sum of the roots of unity, cube roots of unity। तुम लोग भी करो। It's actually क्या है ये? It's a GP, geometric progression with omega is the common ratio। So geometric progression में इसका जो फॉर्मूला होता है, it's a r to the power n omega to the power cube। तो टोटल 3 टर्म है यहाँ पे, -1 बाय ओमेगा -1। नाउ ओमेगा क्यूब इज 1, so 1 minus 1 is 0, so 0 by something is 0। So summation of the cube root of unity is equal to 0। Now product, fourth point is product 1 omega square। You will find omega cube and omega cube is 1। Okay, omega cube is 1। Okay, now fifth point is very important, that is conjugate। I said that the complex roots always comes with pair, and this pair is conjugate each other। Okay, मतलब पेयर में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट है। ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेट है? लेट्स डू इट। अच्छा, कॉन्जुगेट में एक फॉर्मूला और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। याद है? z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। ओके, नाउ जब mod z का वैल्यू 1 होगा, that means z into z bar is equal to 1, then एक दूसरे को, then these are conjugate to each other। okay, इसको आप लोगों को याद रखनी है। these are conjugate to each other if z into z bar is equal to 1। now यहीं पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? we get omega cube is equal to 1। now इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो we'll get omega into omega square is equal to 1। so omega is a complex number, omega square is also a complex number, so this omega is conjugate to omega square, and also omega square is a conjugate of omega। ये कैसे हो रहा है? जब हम लोग इसका जियोमेट्रिक प्लॉटिंग करेंगे इसके बाद, उसमें और आसानी से दिखेगा कि दिस आर कॉन्जुगेट। इट मीन्स दिस विल लाई, इट मीन्स दिस टू विल लाई ऑन द सेम vertical line in the argand plane। okay, और इसको हम प्लॉटिंग करके दिखाएंगे आपको। so the sixth point is geometric plotting। geometric plotting, किसका geometric plotting? geometric plotting of 1 omega square।
It's geometry plotting of cube root of unity. So सबसे पहले एक सबसे पहले अर्गेंट प्लेन डिफाइन करते हैं. अर्गेंट प्लेन is nothing but the complex plane in which real part is denoted as x-axis and imaginary part y-axis में. So first is 1, 0. 1 that means 1, 0. So यहीं पे अगर 0, 0 है, 1 कितना दूरी पे है 0, 0 से? 1 यूनिट दूरी है और उसका आर्गुमेंट भी 0 है. So that is 1, 0. Right? Cos 0 plus I sin 0. So argument, its amplitude is 0 and modulus value is 1. So this is 1, 0. The first that is Z1. Sorry, this is actually Z0. Z1. Okay, now omega. ओमेगा का अगर हम लोग प्लॉटिंग करना चाहते हैं, ओमेगा इज वर्ड एक्चुअली. ओमेगा इज माइनस ऑफ प्लस आई रूट 3/2. तो इसका मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 1. तो ओमेगा भी जो लाई करेगा वो 0, ओरिजिन से कितना दूरी पर होगा? 1 यूनिट दूरी होगा. इट मीन इसका डिस्टेंस और वो जो ओमेगा पॉइंट, चाहे वो यहीं पे लाई करे, यहीं पे लाई करे, कहीं पे भी लाई करे, 1 यूनिट डिस्टेंस में ही होगा. ओके, नाउ इसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं, दैट इज आर्गुमेंट निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू. सो tan इनवर्स रूट 3/2 बाय माइनस हाफ इज you will get theta is 60 degree, but it lies in second quadrant. So pi minus theta, that means pi minus theta. So 120 degree, theta is 60 degree. So यहाँ पे 2 pi by 3. So this is pi by 2, 90 degree. Somewhere 8 पे कहीं पे होगा. Okay, so Z1 or you could say omega lies here. This angle, this is 1 unit distance and this angle is 2 pi by 3. Like for the case of omega square is equal to minus half minus I root 3/2. इसका भी मॉड वैल्यू जो है 1 है एंड थीटा minus 120 degree, that is 2 pi by 3. अपने से खुद से करो. tan इनवर्स minus root 3/2 in the same way. जस्ट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए जरिए, सॉरी हाँ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और थीटा एज इट इज हट जाएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में ना, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा पाई बाई 3 है, तो थीटा माइनस पाई होता है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा माइनस पाई इज माइनस 2 पाई बाई 3. इट मीन्स ओके, सो 1 यूनिट डिस्टेंस में ही होगा और 2 पाई बाई 3 यही से 2 पाई डिस्टेंस तक चलेंगे हम लोग. ओके, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 यूनिट समवेयर लाइक है, इसलिए डिजिटल बोर्ड बेहतर है. डायरेक्ट एक बार में फंक्शन डाल दो आ जाएगा. ओके, दिस इज Z2, इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर एंड दिस एंगल इज minus 120 degree, minus 2 pi by 3. Okay, and if we complete this dot, you will get a circle of radius 1 unit. Now look at this. This is 2 pi by 3. This angle is also 2 pi by 3. So this angle will also 2 pi by 3. 120 degree, 120 degree, 120 degree. Okay, now मैंने कहा था कि these are conjugate to each other. So this will lie on the same vertical line. इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि ये सेम वर्टिकल लाइन पे है या नहीं? ये भी 0 से 2 पाई बाई 3 ऊपर की तरफ है
एंड सेंटर से सेम 1 डिस्टेंस पर है। ये वाला पॉइंट भी 2π/3 डिस्टेंस नहीं है एंड 1 डिस्टेंस पे ही है, जस्ट उल्टा फॉर्मेट, जस्ट -2π/3 एंगल में है। तो दिस टू आर एक्चुअली कॉन्जुगेट। लेकिन इसका अगर वैल्यू भी देखें तो -12 प्लस i√3/2, इसका वैल्यू देखें तो -12 i√3/2। सो x कोऑर्डिनेट इज सेम -1, राइट? x कोऑर्डिनेट इज सेम। √3/2 एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम लाइन पे √3/2 एक बार नीचे की तरफ आ रहा है। सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर एंड दिस थ्री पोर्शन so this three vertices in this three portion, so the unity, the cube root of unity will divide a circle of radius unit into 3 equal parts. तो ये वाला पॉइंट लिख लो, ये 1 ओमेगा स्क्वायर divide the circle of radius 1 into 3 equal parts, okay, with vertices 1, 0, omega, 0 and omega square, 0. I hope cube root of unity is clear and its properties also, okay? तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। So हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इतना अच्छे से लिखा हुआ चीज इसको मिटाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये करने में, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है ये सब पढ़ाने से पहले, क्योंकि मैं नया हूँ अभी इस फील्ड में। So that's why it will take time, and this whiteboard, it takes too much time to erase. Oh, sorry. 2-3 फैक्टराइजेशन है जो ओमेगा स्क्वायर से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखनी चाहिए। एक a² माइनस ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b ओमेगा इंटू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर, okay, and second one is a² plus ab plus b² is equal to a minus b omega into a minus b omega square. Third one is a² plus b² plus c² plus ab plus ba plus ca is equal to a plus b omega plus c omega square into a plus b omega square plus c omega. Now ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने अभी सीखा, इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे किसी क्वेश्चन में अगर -1 प्लस माइनस √3i किसी चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है और वैसे सिंपली दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली ओमेगा को वहीं पे लेके आएंगे एंड उसके बाद ओमेगा का जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करेंगे। इससे कैलकुलेशन बहुत ही इजी होगा और यही करना है हम लोगों को, ओके? एंड ओमेगा अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि ओमेगा क्या है, देन यू हैव टू जस्ट ओमेगा को कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी मान देना है, ओके? यस। नाउ x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला इक्वेशन दिया रहा है और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, दोनों ही सेम एक्चुअली, तो इस टाइप के इक्वेशन में इस इक्वेशन का 2 रूट होता है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। आई रिपीट इट अगेन, x² प्लस x प्लस 1, ये बहुत जगह आएगा आपको। तो जब ऐसा दिया रहे तो इसका 2 रूट है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। इन द सेम वे x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस प्लस 1। ये दो इक्वेशन जो है इसका 2 रूट होता है, एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? -12 प्लस i√3/2। ओके, क्लियर है? नाउ वी विल फाइंड
क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट वन जेड क्यूब इज इक्वल टू 8, सो ए से जेड क्यूब इज जेड इज इक्वल टू माइनस 8 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 टू द पावर 1/3। तो इसका 3 रूट है, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। तो जो 3 रूट हैं वो 3 रूट क्या क्या है पूरे का, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। द सेकंड वन इज जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z -26। ये जस्ट सिंपली यहीं से यहाँ तक क्या है, z प्लस 1 क्यूब -1 तो 27 etc. So now he say z plus 1 is equal to 27 to the power 1/3. You will get 3 into 1 के power 1/3. यही से भी 3 रूट निकलेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सो z प्लस 1 का 3 रूट है, तो 3 रूट क्या क्या है, 3 ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो यही से पहला चीज जो मिलेगा z प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो z इज इक्वल टू 2, राइट। हाँ, दूसरा z प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओमेगा, so z is equal to 3 omega minus 1, got it? In the same way third one is 3 omega square minus 1, 3 omega square minus 1, ये थर्ड वाला। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। ये था। अब एक क्वेश्चन करेंगे जो AIEEE में आया 2009 में आई गेस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 का पहला जो AIEEE 2010 में आया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का जो दो रूट होता है, हम लोग थोड़ी देर पहले फैक्टराइजेशन कुछ नोट पॉइंट लिखे थे, उसमें इसका दो रूट है x स्क्वायर, राइट। और वो दो रूट क्या क्या है, एक तो ओमेगा, सॉरी एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हमें जस्ट यूज करना है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर, इसका प्रॉपर्टीज को। नाउ अल्फा टू द पावर 2009, so alpha is what? Alpha is minus omega and beta is minus omega square. So minus omega to the power 2009 plus minus omega square to the power 2009। अब बस सिंपली तुम्हें वही करना है, जैसे इसको पावर में और नंबर है, तो माइनस एज इट इज बाहर आएंगे। ओके, उसके बाद इसको अगर तीन के थ्रू डिवाइड करें, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो वो वाला प्रॉपर्टीज यूज करने हैं आप लोगों को, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। एंड उसके बाद शायद ये भी यूज करना पड़ सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मिल सकते हैं बाद में। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी यूज करना है और इस पे क्या करना है, और मल्टीप्लाइड हो जाता है तो 4088, उसके बाद 3 से डिवाइड करना है, जो भी बाहर पावर बच जाएगा उसको या तो ओमेगा बचेगा या ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद दोनों को ऐड करके ऐसे वैल्यू निकालना है। ओके, हाँ, द सेकेंड वन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मीन्स 2019 में आया था। now इसमें से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर इज 4 माइनस
4 into 1 into y 2 into 1. So -2 plus minus root over प्लस माइनस 4 -4, -4 रूट करेंगे तो 2y बाई 2. तो x का दो वैल्यू है, एक -1 प्लस i, दूसरा x2 -1 माइनस i. राइट, हमें दो वैल्यू मिला है x का, एक -1 प्लस i एंड x2. तो इसको हमें सबसे पहले पॉइलट्स फॉर्मेट में बदलना है. अब क्या बोला कि अल्फा टू द पावर 15, ये क्या है? नथिंग बट दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. इसके पावर में 15 करना है. तो सबसे पहले पोलर फॉर्मेट में हम लोग लेके चलेंगे, तभी वो ये डी-मार्कोव्स थ्योरम फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है. ओके, तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर को हमें बढ़ाना है और उसके बाद कैलकुलेट करना है. ओके, तो इसको सबसे पहले पोलर फॉर्मेट में ले जाने के लिए इसका मॉड वैल्यू जानना जरूरी है. इसका मॉड √2 है और आर्गुमेंट करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan इनवर्स 1 π/4, तो 3π/4. तो e टू द पावर i 3π/4. क्लियर? यस. नाउ सेम √2 एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए थीटा माइनस पाई होता है. थीटा माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट का एम्पलीट्यूड जो है, यही पे थीटा क्या है? थीटा π/4. तो थीटा माने π/4 माइनस पाई इज इक्वल टू -3π/4. सो e टू द पावर i -3π/4. अब क्या बोला देखो जस्ट, अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15. अल्फा टू द पावर 15 इज, अब क्या है, इसके पावर में 15 डाल देते हैं, तो √2 टू द पावर 15 इंटू e टू द पावर i 3π/4 इंटू पावर 15 है, तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस सेम √2 टू द पावर 15, तो इसको √2 टू द पावर 15 हम कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर i -3π/4 इंटू 15. Yes, it's like this. Okay, so अब इसका वैल्यूज निकालना है. हम लोग सिंपली ये भी कर सकते हैं. इसके बाद 2 टू द पावर 15/2 इंटू, इसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऐसा करके है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को 2π, सिंपली इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा? cos 15π/4 प्लस i sin 15π/4, सॉरी 45π/4. अब इसको एक्सपेंड करें तो सेम cos -45π/4 माइनस cos 45π/4 and minus i sin 45π/4. तो साइन वाला साइन तो कट जाएगा, साइन कट जाएगा. अब cos अपने अंदर का माइनस को खा जाता है, तो ये
cos सिंपली 45 पाई बाई 4 ही आएगा। इसको आप दोनों जोड़ोगे तो 2 to the power 15 by 2 into अब 2 cos 45 पाई बाई 4। अब 45 पाई बाई 4 को अगर हम लोग 11 पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसे फॉर्मेट में लिखें। 45 पाई बाई 4 का वैल्यू तो नहीं पता, तो 11 पाई प्लस पाई बाई 4। अब 11 पाई प्लस पाई बाई 4 का जो वैल्यू है तो ये क्या है एक्चुअली? तो 2 to the power 15 by 2 into cos, इसका जो वैल्यू है ये -1/√2 है। ओके, ये मेरे ख्याल से 2 पाई तो 10 पाई भी यही तक होगा, तो 11 पाई यही है, उसके बाद पाई बाई 4 समवेयर यही पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ओके, तो इसको जस्ट वैल्यूज निकालो अब, माइनस इसका कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू। सो ये था हम लोगों का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाउ द मोस्ट डिजायर्ड टॉपिक दैट इज nth रूट ऑफ यूनिटी, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसका मतलब जैसे हम लोग किए थे z³ इज इक्वल टू 1, इन द सेम वे क्यूब की जगह जस्ट जनरलाइज्ड n। ओके, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका पावर अगर हम लोग n तक ट्रेस करें तो हमें वैल्यू 1 मिलेगा। और ऐसा कितना कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल सकता है कि जिसका पावर हम लोग n तक लेके चले और आउटपुट हमें 1 मिले। ऐसे n वैल्यूज मिलेंगे क्योंकि डिग्री यहीं पे n होगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। रेडी-मेड थ्योरम यहीं पे भी यूज होंगे, एंड सेम जैसे हम लोग z³ इज इक्वल टू 1 किए थे, इन द सेम वे यहीं पे भी जस्ट क्यूब की जगह यहीं पे 10 है। ओके, जैसे n की जगह 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो जनरलाइज हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 cos 0 प्लस I sin 0, सेम sin 0 you can do with me. Now cos 0 plus I sin 0 to the power 1 by n, इसको जनरलाइज्ड थीटा को जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लेकर चलोगे तो cos 2 पाई बाई 2m पाई प्लस I sin 2m पाई, 2m पाई प्लस 0 होता है, तो 0 तो नलिफाई हो जाएगा। नाउ अब वो जो पावर जो है, पावर यहीं पे भी रैशनल्स है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता, n थीटा होता, पर रैशनल से ये भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा बट नीचे आ जाएगा जनरलाइज करने के बाद, क्योंकि 8 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे आपको यहीं पे। ओके, सो बाई n। अब यहीं पे जो m के वैल्यूज है 0 1 2, जैसे क्यूब पे हम लोग 0 1 2 3 वैल्यू लिए थे, n माइनस क्यूब माइनस 1, यहीं पे डॉट 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 n माइनस 1, क्योंकि क्यू का वैल्यू यहीं पे n है, तो n माइनस 1, टोटल n वैल्यूज लेंगे। ये n वैल्यूज है, ओके, टोटल n वैल्यूज n माइनस 1 तक 0 से। ओके, सो यही से हम लोग वैल्यूज मिलेगा सब। जैसे सबसे पहले z0, इट मीन्स m को अगर हम 0 पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, m को 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, m को अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू 1, सो z1 इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई n प्लस I sin 2 पाई बाई n। इसी को हम लोग ऑयलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो e टू द पावर I 2 पाई बाई n। ओके, दिस z1। नाउ हम लोग m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। ओके, सो m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देन z2 इज इक्वल टू
cos of 4 pi by n plus I sin 4 pi by n. ओके, सो इसको अगर हम लोग वायलेट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या दिखेगा? e टू द पावर I 4 pi by n, e टू द पावर I 4 pi by n. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. सो e टू द पावर I 2 pi by n स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. सो इट्स नथिंग बट ये जो z1 है, z1 का स्क्वायर. यहाँ तक तो z1 है, जस्ट z1 स्क्वायर. अगर हम लोग तीसरा वैल्यू निकालेंगे तो वो जो z3 मिलेगा, z3 where m is equal to 3 पुट करेंगे, then it will be z1 क्यूब मिलेगा. ओके, z1 क्यूब मिलेगा. अब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं. तो z1 is equal to अल्फा, तो ये क्या होगा? अल्फा स्क्वायर. ओके, और ये क्या है? अल्फा टू द पावर 0. ये क्या होगा तो फिर? अल्फा क्यूब. सो यहाँ पे z is equal to 1 to the power 1 by n और z to the power n is equal to 1. इस इक्वेशन का टोटल n डिफरेंट वैल्यूज मिल रहा है, और वो जो n डिफरेंट वैल्यूज है वो क्या क्या है? वो एक है 1 अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ऐसे करके करते हैं अल्फा टू द पावर n माइनस 1. क्लियर? सो z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई n का टोटल n डिफरेंट वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज ये हैं. और यहीं पे अल्फा क्या है? e टू द पावर I 2 pi by n. आई होप यही तक क्लियर है. ओके, नाउ वो जो हमने किया था हमने जो किए थे z इज इक्वल टू z क्यूब इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई 3 था. वहाँ पे कब था? जस्ट 1 अल्फा स्क्वायर. बाय द वे जिसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोल रहे थे. ओके, तो एक चीज, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज देखो, इसको नोट करना है. e टू द पावर आ गया ये, हाँ, e टू द पावर I 2 pi by n, 2 pi by n. इस फॉर्मेट को याद रखना है. लाइक अगर बोला जाए कि z इज इक्वल टू e टू द पावर I 2 pi by 7, sorry, हाँ, e to the power 2 pi by 7. It means it's 7th root of unity, right? Yes. But अगर बोला जाए z is equal to e to the power I pi by 18, तब क्या होगा? हमारा फॉर्मेट आपको याद रखनी है कि e to the power I 2 pi by n. ओके, 2 pi by n I, तो 2 pi लेके आ रहे हैं हम लोग, और तो ऊपर 2 pi लिखेंगे, नीचे 36. तो इट्स 36th रूट ऑफ यूनिटी. ओके, 36th रूट ऑफ यूनिटी. एक दूसरा है, जैसे z इज इक्वल टू e टू द पावर I 3 pi by 7. ओके, हमें क्या चाहिए? 2 pi by 7, मतलब 2 pi by n चाहिए हमें एक्चुअली. ये कितना, मतलब जैसे nth रूट एक कितने पावर में है? जैसे e टू द पावर I pi by 7. हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं क्यूब, और सिर्फ पाई है तो हम लोग को यहाँ पे 2 पाई लाना है, तो 2 पाई बाई नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो ये 14th रूट ऑफ यूनिटी है. z इज इक्वल टू 3 pi by e टू द पावर I 3 pi by 7. तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, फॉर्मेट भूलना नहीं है कि अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर I 2 pi by n. ओके, इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने z क्यूब इज इक्वल टू 1 के लिए पढ़ा था, वही सेम
ये जो अल्फा टू द पावर n है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। किसी के पावर का वैल्यू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब सबका पावर का वैल्यू अगर रेज करें n तक तो सबका वैल्यू 1 मिलेगा। ओके, ये पहला वाला है। और सबका जो मॉड्यूलस वैल्यू है, क्योंकि अल्फा क्यूब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और सबका जो मॉड वैल्यू है, सबका जो मॉड वैल्यू है वो 1 है। लाइक मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा क्यूब डॉट 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 मॉड ऑफ अल्फा टू द पावर n minus 1 is equal to 1. This all are unimodular. Okay, I hope यहाँ तक क्लियर है। Now एक समेशन वाला, हाँ, प्रॉपर्टीज नंबर 3, सम ऑफ, जैसे हम लोग किए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन द सेम वे सम ऑफ 1 plus alpha square plus alpha cube plus dot 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 alpha to the power n minus 1. These are n terms, total n terms है। और ये जो 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, शो कर रहे हैं, दिस इज अ जीपी विद अ कॉमन रेशियो ऑफ अल्फा। तो इसका समेशन वाला वैल्यू क्या होगा, जस्ट जीपी का फॉर्मूला यूज करो, ये r टू द पावर n, क्योंकि टोटल n टर्म्स है, -1 बाय r माइनस 1, r ये कॉमन रेशियो अल्फा है। नाउ दिस वैल्यूज इज 1, अल्फा टू द पावर n का वैल्यू 1 है, सो दिस इज 0 बाय अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। द सम ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ओके, नाउ प्रोडक्ट करें तो 1 into alpha square alpha cube dot 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 alpha to the power n minus 1 is equal to, ये जिस सिंपल फॉर्मूला -1 to the power n minus 1। तो जब n का वैल्यू ऑड है, सो n जब ऑड है, n जब ऑड है तो इसका वैल्यू +1 है, n जब इवन है इसका वैल्यू -1 है। ये कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, अब देखो तो अल्फा एंड अल्फा टू द पावर n minus 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा टू द पावर n उसका वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। अल्फा स्क्वायर और वहीं पे अल्फा टू द पावर n minus 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ऐसे ही करके इसको निकाला गया और -1 इसलिए रखा गया ताकि वो इवन ऑड वाला चीज आए। ओके, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज कॉन्जुगेट। अब यही से आपको फील आएगा कि मैथमेटिक्स में सच में हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद इसका जियोमेट्रिक प्लॉटिंग करेंगे जैसे हम लोग वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए किए थे। ओके, सो कॉन्जुगेट, ओके, कॉन्जुगेट के लिए सबसे पहले अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, वी नो दैट। प्रीवियसली एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट का जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके, वो क्या है, z बार इज इक्वल टू, अगर 1 होता है देन z एंड z बार कॉन्जुगेट टू ईच अदर, राइट, z एंड z बार कॉन्जुगेट टू ईच अदर। यहीं पे भी हम लोग सेम चीज करेंगे। सो फर्स्ट अल्फा टू द पावर n minus 1 is equal to 1। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर, द प्रोडक्ट इज 1 equal to 1, then we will say that these two are conjugate to each other, conjugate to each other। जैसे ये हुआ, इन द सेम वे हम लोग ये भी कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा टू द पावर n minus 2 is equal to 1। सो दिस टू आर ऑल्सो कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ऐसे भी कर सकते हैं।
alpha to the power 4 into alpha to the power n minus 4 is equal to 1. So these two are also conjugate. These two are also conjugate. अब conjugate का properties क्या होता है कि वो same vertical line पे lie करता है. इसका मतलब हम लोग अगर plot करेंगे alpha 1 alpha to the power n minus 1 और dot 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 जितने भी n values मिलेंगे, अगर हम लोग सबको plot करेंगे तो हम देखेंगे कि alpha and alpha to the power n minus 1 will lie on the same vertical line. Okay, and also alpha square and alpha to the power n minus 2 will also lie on the same vertical line. Okay, इसका मतलब वो दोनों just mirror image है with respect to real x-axis. Clear है? Alpha cube and also alpha to the power n minus 3, alpha 4 and alpha to the power n minus 4, ये सब एक दूसरे का कॉन्जुगेट है. तो जब हम इन सबको प्लॉट करेंगे तो सेम वर्टिकल लाइन पे दिखेगा, जस्ट एक एक्स एक्सिस के ऊपर में रहेगा, एक एक्स एक्सिस में नीचे रहेगा. आई होप ये तक क्लियर है. नाउ हम लोग इसको प्लॉट करेंगे. इट इज जियोमेट्रिक प्लॉटिंग ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी. आई होप फील आ रहा होगा. ओके, नाउ 1 अल्फा स्क्वायर इनको हम ज्योमेट्रिकली प्लॉट करना चाहते हैं. ओके, सो ये एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस. तो फर्स्ट वन इज 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n minus 1. तो सबसे पहले 1 को प्लॉट करेंगे. 1 इज यूनिट डिस्टेंस पे है 1,0 with the angle from with respect to x-axis is 0 degree. So this is 1. ये क्या है? Alpha to the power alpha to the power 0 है. Okay? Yes. Now alpha को प्लॉट करेंगे तो alpha कितने एंगल पर है? Alpha एक्चुअली क्या है? e to the power I 2 pi by n. Right? It means the angle. Okay, and its modulus is 1. इसका मतलब है अल्फा भी 0 से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर है और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल की दूरी पर है? 2 पाई बाई n. मान लेते हैं कि ये यूनिट दिस इज 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द origin. Now this theta is 2 pi by n. So this is alpha 1, and we know that alpha 1 and alpha to the power n minus 1, these two are conjugate to each other. Okay, and कैसे बोलेंगे conjugate to each other? तो अगर एक दूसरे conjugate हैं तो वो same vertical line पे lie करेगा, right? उसका डिस्टेंस भी सेंटर से ओरिजिन से 1 यूनिट पर है और इसका एंगल कितना होगा? जस्ट 2 पाई बाई n ऑपोजिट साइड में -2 पाई बाई n. ओके, सो दिस इज अ वर्टिकल लाइन, दिस इज द सेम वर्टिकल लाइन एंड दिस अल्फा टू द पावर n minus 1. क्लियर है? यस, आई होप इट्स क्लियर. ये क्यों दोनों एक सेम वर्टिकल लाइन पे हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट में है. नाउ अगर हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लॉट करना चाहते हैं, अल्फा स्क्वायर मतलब क्या है? e to the power I 2 pi by n स्क्वायर, राइट? इसका मतलब, और ये क्या है? e to the power I 4 pi by n. इसका मतलब है ये जो हम लोग एक्स एक्सिस से एंगुलर डिस्टेंस है वो 2 पाई बाई n नहीं है, 4 पाई बाई n है अल्फा स्क्वायर का. तो कितना है? नहीं, इसी का सेम डबल है, राइट? तो अगर 2 पाई बाई n यहीं तक है तो 4 पाई बाई n समवेयर, और वो कितना डिस्टेंस पे है? 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन. और ये जो एंगल है ये कितना है? 2 पाई बाई n. इसके बाद भी नाउ दिस इज अल्फा स्क्वायर. ओके,
दिस इज अल्फा स्क्वायर. नाउ अल्फा टू द पावर n माइनस 2 वो भी सेम डिस्टेंस पे लाई, सॉरी सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा, बिकॉज दिस टू आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर. और इसका एंगल क्या होगा? जस्ट सेम, ए से इतना भी माइनस 2 पाई बाई n. एक्चुअली टोटल एंगल माइनस 4 पाई बाई n. ओके, क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर. इसके बाद जब हम लोग अल्फा क्यूब प्लॉट करेंगे वो भी समवेयर यहीं पे होगा ऐसे, उसका भी जो कॉन्जुगेट होगा वो सेम लाइन पे, सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा. ऐसे करके हमें मिलेगा. तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है? एक पोर्शन है फर्स्ट वाला, जो ये एरिया मिल रहा है, इसी को अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो हमें दूसरा वाला मिल रहा है. इसको फोल्ड करेंगे तो हमें तीसरा वाला मिलेगा. इसको फोल्ड करते जाएंगे ऐसे, टोटल n टाइम्स तक हम फोल्ड करेंगे तो टोटल पूरा सर्कल मिलेगा. यही बात समझना है. और ये फोल्ड करेंगे तो ये क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सब जो है एंगल सेम है, रेडियस सेम है, और ये आर्क लेंथ भी ये भी सेम ही होगा. सेम क्यों? क्योंकि सेम एंगल सेम चीज, सेम एंगल सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये भी AC इज इक्वल टू आर थीटा. उस फॉर्मेट में लेके चलो. आर कॉमन है, थीटा कॉमन है, तो एस भी कॉमन ही होगा. ओके, सो यही से हम लोग एक कंक्लूजन लिख सकते हैं. अब इसको अगर इस डॉट को हम लोग जोड़ेंगे तो एक सर्कल मिलेगा हमें. इस डॉट को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस होगा 1, जिसका रेडियस 1 होगा. और ये जो पोर्शन है रेडियस 1, और ये जो एक एक पोर्शन है, तो हर एक ये जो अल्फा, अल्फा 2, अल्फा क्यूब, अल्फा 4, इन सारे जो पॉइंट है एक एक वर्टिसेस, मतलब एक पॉलीगन होगा एक्चुअली. ऐसे करके ये आगे चलेगा, ऐसे ये आगे ऐसे ही चलेगा, ऐसे करके दिस vertices will make an equal regular polygon with the vertices 1, alpha 1, alpha 2, alpha 3, dot dot dot, alpha n तक है. तो हम लोग यहीं पे क्या लिखेंगे? 1 alpha, alpha square dot dot dot, alpha to the power n minus 1 will form a regular polygon, and this will also divide the circle, divide the circle with radius 1 into n equal parts. Okay, I hope ये तो क्लियर है पूरा. जियोमेट्रिकल प्लॉटिंग कैसा है, सारी चीज़ हो गया. अब इसका थोड़ा सा और क्रिस्प वे में दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये जो है nth रूट ऑफ यूनिटी का टोटल n पोर्शन है. हम लोग एक वाला दूसरा वाला, जैसे z² इज इक्वल टू 1, z2 इज इक्वल टू 1, z⁴ इज इक्वल टू 1, 4-5 ऐसे ही पिक्चर बना के दिखाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा और भी अच्छे तरीके से. ओके.